Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start new chapter number 5, index numbers. Introduction. In the previous chapter we have studied the average under measures of central tendency, which are used to find out a simple representative value of a distribution. Here we have to deal with the average changes in a group of distinct but related variables with respect to different periods of time or different places. Generally, these changes are studies related to time rather than place. For example, if we have rupees 100, we can purchase goods or services worth rupees 100. But it is not always the same, because the purchasing power of money, that is the value of money, change now and then. Sometimes money has greater purchasing power at one period or place, and sometimes has lesser purchasing power at the other time or place. The changes of money value cannot be measured directly. It depends upon the price level. The value of money, that is its decrease or increase, is measured on the basis of price level, that is its increase or decrease. Further, the price of some commodities may be increasing while those of other may be decreasing during the two periods, and relate and the rates of increase or decrease may be different for different commodities. We want one figure to indicate the general changes of different commodities as a whole. This is called an index number. In short, an index number is a device that measures the changes occurring in data from time to time or from place to place. Index numbers are called the economics barometer because they show the prevailing socio-economic activities of a country and can be used to feel the pulse of economy, as they are the indicators of inflationary or deflationary tendencies of the country. They are used to indicate the change in price, production, manufacturing, foreign trade, share prices, school or college enrollments, crimes, etc. Index numbers are pure numbers without the unit of measurement and are expressed as percentages. In other words, index numbers are percentage relative change that compare changes in the prices or quantities at different periods of time with that of some standard period, which is called base period of time. Index numbers may be simple and composite. Simple index numbers. A simple index number is a number that measures a relative change in a single variable with respect to a base. Composite index numbers. A composite index number that measures an average relative change in a group of distinct but related variables with respect to a base. In, ge in general, there are three types of index numbers: price index numbers, quantity index numbers and value index numbers. और वैल्यू इंडेक्स नंबर्स में फर्दर क्या आ जाते हैं? अनवेटेड इंडेक्स नंबर आ जाते हैं, वेटेड इंडेक्स नंबर्स और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर्स। ये किस में आ जाते हैं? वैल्यू इंडेक्स नंबर्स। ठीक है, इन सबको क्या कहते हैं? वैल्यू इंडेक्स नंबर्स कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस प्राइस इंडेक्स नंबर्स. These index numbers show relative changes in the wholesale or retail prices of a variable or a group of related variables with respect to time or place. Quantity index numbers.
These index numbers show relative changes in the quantity of a variable or a group of related variables with respect to time or place. Unweighted index numbers. These index numbers measures relative changes in a group of related variable with respect to a base without giving weights to all the variables. Weighted index numbers. These index numbers measures relative changes in a group of related variables with respect to a base when relative importance are assigned to the variables. Cost of living index numbers. These index numbers show relative changes in the price of goods and services generally consumed by people as a consumer. Steps, points or problems involved in the construction of index numbers. First of all, purpose and scope. There is no single index number which can serve all purposes. Every index has its own uses and limitations. So, it must be defined clearly the purposes for which the index number is to be constructed and why. When the purpose is decided, then we determine the scope, that is the field or area to be covered by the purpose of the index. कि सबसे पहला स्टेप क्या होगा जब इंडेक्स नंबर हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो सबसे पहला स्टेप होगा कि जो भी इंडेक्स नंबर हम कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं उसका पर्पस क्या है। फिर हम देखेंगे, पर्पस जब जान लेंगे तो फिर हम देखेंगे कि इसका स्कोप क्या है। ठीक है। सेकंड जो स्टेप है वो है इट इज सिलेक्शन ऑफ आइटम्स। आफ्टर डिसाइडिंग द पर्पस ऑफ द इंडेक्स इट बिकम्स essential that which item to be included in the construction of index number. We include only reasonable number of relatively important items which are representative of tastes, habits and customs of the people. सेकेंड स्टेप में क्या है कि सिलेक्शन ऑफ आइटम्स, कि हम इंडेक्स नंबर जब कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसके लिए हम प्राइसेस ले रहे हैं या क्वांटिटीज़ ले रहे हैं, उसके लिए हम ऐसे आइटम जो हैं वो सिलेक्ट करेंगे जिनका ताल्लुक जो है वो लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी से हो, या फिर क्या है कि वो इंक्लूड ओनली रीज़नेबल नंबर ऑफ रिलेटिवली इम्पॉर्टेंट आइटम्स जो कि लोगों के टेस्ट से जिनका जो कि रिप्रेजेंटेटिव हों, लोगों के टेस्ट के भी, हैबिट्स के भी और कस्टम्स के भी। ठीक है, ऐसे आइटम्स हम सेलेक्ट करेंगे। द थर्ड वन इज कलेक्शन ऑफ प्राइसेस। द नेक्स्ट स्टेप रिलेटेड टू पर्पस एंड सिलेक्शन is the item to be included is to decide from where the price data आर टू बी ऑब्टेन्ड, यानी होलसेल हम लेंगे या फिर रिटेल प्राइस में लेंगे, कौन से हम प्राइसेस जो हैं कौन सी हम जो है वो कलेक्ट करेंगे उन अशिया की, उन चीज़ों की जो कि हमने सेलेक्ट किए, उन आइटम्स की, होलसेल या रिटेल प्राइस, ये हमने देखना है। इट इज़ वेल नोन फैक्ट दैट प्राइसेस ऑफ आइटम्स और कमोडिटीज़ फ्रॉम द रिलायबल एंड अनबाइस्ड सोर्स, public sources or from standard commercial magazines, chambers of commerce etc. are collected। और ये प्राइसेस जो हैं किसी ऐसे इदारे से इन कमोडिटीज़ की जो प्राइसेस होंगी अनबाइस्ड सोर्स से हमें और रिलायबल अनबाइस्ड सोर्स से हमें कलेक्ट करनी होंगी। और वो सोर्सेज क्या हो सकते हैं, पब्लिक सोर्स भी हो सकते हैं या फिर स्टैंडर्ड कमर्शियल मैगजीन से या फिर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स से है, जो कि इन अशिया की कीमतें जो हैं वो डिसाइड करते हैं, तो वहाँ से हम ये अशिया की जो कीमतें हैं वो लेंगे। फोर्थ स्टेप इज सिलेक्शन ऑफ बेस पीरियड। The next step in the construction of index numbers is the selection of base period. One cannot say whether the price level has increased or decreased unless the price level of current period is compared with the price level of the base period. The base period is decided by the experts
but it must be a normal or economically stable period and should not be far distant in the past. कि हम बेस पीरियड की सिलेक्शन जो है, इस कलेक्शन ऑफ प्राइसेस के बाद कौन सा स्टेप आता है कि हम बेस पीरियड सेलेक्ट करें। बेस पीरियड क्या होगा, जिसके साथ हम करंट पीरियड की जो प्राइसेस हैं या क्वांटिटीज़ हैं, हम उसके साथ जो है वो कंपेयर करने जाएंगे। बेस पीरियड हम उसको लेंगे। जैसे हम कहते हैं कि 5 साल पहले का जो पीरियड है उसके साथ और आज की जो है 2020 की, हम 2015 की प्राइसेस के साथ हम कंपेयर करना चाह रहे हैं, तो 2015 जो होगा वो हमारे लिए बेस पीरियड होगा और 2020 जो है वो करंट पीरियड है। ठीक है, तो हम उसकी प्राइसेस को या उसकी क्वांटिटीज को उससे कंपेयर करेंगे। फिफ्थ स्टेप इसमें कौन सा आ गया, चॉइस ऑफ एवरेज। चॉइस ऑफ एवरेज फिफ्थ स्टेप कि अब कौन सी एवरेज जो है उसमें हमने जो है वो यूज़ करनी है। चॉइस ऑफ एवरेज आफ्टर द प्राइस और लिंक relatives have been computed, next step is the selection of appropriate and suitable average to be used for getting index numbers, keeping in view the relative merits and demerits. Experts have suggested the following averages to be used for computing the index numbers. Arithmetic mean is more commonly used average as it is easy to compute and simple to understand. As the mean is affected by extreme values, so median may be used in such cases. Geometric mean is the most suitable average to be used for averaging the relatives because it gives equal weight to equal ratios of the equal ratio of change, and that the geometric mean of relatives is reversible. The sixth step is selection of suitable weights. Sometimes all the commodities are not of equal importance. So, in order to give due regard to the importance of a commodity, it is necessary to assign suitable weights to the commodities. The weights could be either a set of suitable numbers or the quantities of the various commodities actually consumed, produced, or sold, or their money values. What is base period? A base period is a standard period or reference period on the basis of which the relative changes are to be measured and compared. The base period may be selected by fixed base method and chain base method. Fixed base method. In this method, a particular economically stable year or average of some years is chosen as the base period that remains fixed or unchanged. It is customary to denote base period price or quantity as P naught or Q naught, and current year price or quantity as Pn or Qn respectively. The index for base period is taken as 100. Index numbers or price relatives for other periods are computed by dividing the price of current period by the base period and denoted by P naught N. Fixed base period should be a normal period. Advantages of fixed base method. Its computation is easy. It is easy to understand. It facilitates comparison with the distant past. Disadvantages of fixed base method. It does not provide direct comparison between successive periods. The choice of a fixed base is difficult, and with the passage of time, the selected period becomes outdated and need shifting, which is not an easy job.
The substitution or introduction of new commodities and deletion of outdated commodities is a difficult task. Now, construction of price index numbers. Simple relatives are simple index numbers. Price relatives. Price relatives are the percentages ratios between the current period price and the base period price or average price of some periods where the year under comparison is called the current year or the given year and the year with which the comparison is made is called the base year. It is denoted by P naught n and it is equal to Pn divided by P naught into 100. Pn is the current period price and P naught is the base period price. Similarly, quantity relatives are Q denoted by Q naught n. Q naught n and it is equal to Qn divided by Q naught into 100. The meaning is the current period quantity, Qn is the current period quantity and Q naught is the base period quantity into 100. Chain-based method. In chain-based method, the base period is not fixed but goes on changing from period to period and moves with the current period. That is, the relatives are computed with the very preceding period as the base and such relatives are called link relatives. Link relatives क्या होते हैं link relatives? The percentage ratios between the current period and the preceding period price. It is denoted by P naught n and it is equal to Pn over Pn minus 1 into 100. Pn is the price of current period and Pn minus 1 is the price of preceding period into 100. अब इसमें जो हम फिक्स बेस मेथड जब यूज़ करते हैं तो उसमें हम प्राइस रिलेटिव जो हैं वो फाइंड करते हैं, जबकि जो चेन बेस मेथड है उसमें हम लिंक रिलेटिव्स फाइंड करते हैं कि हर अगली वैल्यू जो है वो उसके लिए उसका पिछला ईयर जो होगा, करंट ईयर उस जो होगा हर ईयर का उसका जो पिछला ईयर होगा वो उसके लिए बेस पीरियड होगा, ठीक है। जबकि प्राइस फिक्स बेस में क्या होता है, एक बेस जो है वो फिक्स होता है, एक जो है बेस पीरियड फिक्स कर दिया जाता है और उसी पे ही हर वैल्यू की परसेंटेजेस जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं। चेन इंडेक्स नंबर्स. The link relatives cannot be directly used to make comparison because they have not fixed base. So the link relatives are converted back to a fixed base by multiplying together all the link relatives without the factor 100 involved between the two periods. This process of conversion is called chaining process and the indices so obtained are called chain indices. This flowchart helps you to understand the computational methods of index numbers. Index numbers have two main categories: simple index numbers and composite index numbers. Simple index numbers are computed by two methods: first fixed base method and chain base method. And composite index numbers are computed by unweighted index numbers and weighted index numbers. Now unweighted index numbers have two methods: simple aggregative method and simple average of relative method. And weighted index numbers are computed by weighted aggregative and weighted average of relative method. And weighted aggregative method is further computed by Laspeyres, Parshis and Fisher ideal index numbers. Weighted average of relatives are also computed by Laspeyres method, Parshis method and Fisher ideal method.
Simple average of relatives are computed by fixed base method and chain base method. And simple aggregative method is also these index numbers are computed by fixed base method and chain base method. Example 5.1 from your book on page 216. The price paid per month is given for the years 1964 to 1973. Calculate simple index numbers using 1964 as base and average of the prices for the first 5 years as base and average of the prices of all the 10 years as base. अब ये प्राइसेस आपको गिवन है और इसमें ईयर्स गिवन है, ठीक है। आपने पहले इसमें फाइंड करना है कि 1964 को बेस लेके आपने सिंपल इंडेक्स नंबर फाइंड करने हैं। अब ये तीन कॉलम्स बने हुए हैं और तीनों पार्ट इसमें हो गए। फर्स्ट जो है हमने 1964 को बेस लेना है, यानी 1964 की प्राइस जो होगी वो बेस ईयर प्राइस होगी और बाकी जो हैं 65 से लेकर 73 तक ये करंट ईयर प्राइसेस हैं, ठीक है। हर ईयर की प्राइस जो है वो डिवाइड होगी बेस पीरियड की जो प्राइस होगी उस पे डिवाइड होगी। जैसे 1964 बेस है तो ये अपने ऊपर डिवाइड होगा, यानी 20 डिवाइडेड बाय 20 हो जाएगा इनटू 100। इंडेक्स नंबर जब भी हम करते हैं हम परसेंटेज की फॉर्म में है, ये हमने उसकी डेफिनेशन में पढ़ा है, ठीक है, कि हम उसको परसेंटेज की फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई आपने करना होगा। 20 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100, तो ये आपके पास फर्स्ट इंडेक्स नंबर आ जाएगा 100 के इक्वल, ठीक है। और 1965 के लिए क्या होगा, आपने 18 डिवाइडेड बाय बेस पीरियड जो है उसकी प्राइस क्या है 20 है, 18 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100, तो ये हमारे पास इंडेक्स नंबर आ जाएगा फॉर 1965 90, ठीक है। नेक्स्ट जो प्राइस है 1966 की वो है 23 और बेस पीरियड की जो प्राइस है वो है 20, तो हम 23 को 20 पे डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इंडेक्स नंबर आ जाएगा 115। इसी तरह से 24 को 20 पे डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इंडेक्स नंबर की 120 फॉर द ईयर 1967। इसी तरह से 1968 की जो प्राइस है वो है 25 को हम बेस पीरियड की प्राइस जो कि 20 है उस पर डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट इंडेक्स नंबर आ जाएगा 125। इसी तरह से 27 को हम 20 पे डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी इंडेक्स नंबर की 135 फॉर द ईयर 1969। 1970 के लिए हम देखें 28 है प्राइस, ठीक है। 28 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100 ये आ जाएगा इंडेक्स नंबर 140 फॉर द ईयर 1970। इसी तरह 1971 के लिए हम फाइंड करेंगे 30 वैल्यू है, 30 प्राइस है उसकी, तो 30 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100 ये 150 आ जाएगा। फिर 32 है फॉर 1972, 32 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100 ये वैल्यू आ गई 160। 1973 के लिए देखें हमारे पास प्राइस है 33, तो 33 को हम 20 पे डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाती है 165, ठीक है। अब सेकंड जो पार्ट है उसमें है कि एवरेज ऑफ द प्राइसेस ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर्स एज बेस, यानी पहले जो 5 साल हैं उनकी जो प्राइसेस हैं उनका जो सम है उसको या उसकी एवरेज जो है वो एज अ बेस पीरियड हमने लेना है। तो हम क्या करेंगे कि पहले जो 5 साल हैं 1964 से लेकर 68 तक उनकी प्राइसेस का हम मीन ले लेते हैं, ठीक है। और वो क्या है 20 प्लस 18 प्लस 23 प्लस 24 प्लस 25,
ठीक है, 5 ईयर्स, और इन सबको प्लस करेंगे और 5 ईयर्स हैं, 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास इसकी एवरेज आ जाएगी 110 डिवाइडेड बाई 5 जो कि इक्वल टू 22 आ रही है। अब हमने हर ईयर की प्राइस को 22 पे डिवाइड करना है। हमारे पास बेस प्राइस वो आ गई है बेस पीरियड की, ठीक है, वो क्या है 22। तो हमने हर प्राइस को 22 के ऊपर डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे फर्स्ट प्राइस हमारे पास क्या है 20 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 100। इसी तरह से नेक्स्ट प्राइस है 18 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 100। ठीक है, तो ये हमारे पास 81.8 हमारे पास 1965 के लिए इंडेक्स नंबर आ जाएगा। फिर अगली जो हमारी प्राइस है वो है फॉर द ईयर 1966 23 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 100 104.5 आ जाएगा। फिर 24 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 100 वो हमारे पास आ जाएगा 109.1। फिर 25 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 100 113.6 आ जाएगी हमारे पास इंडेक्स नंबर। इसी तरह से तमाम वैल्यूज़ को, तमाम प्राइसेस को हम डिवाइड कर देंगे किसके ऊपर 22 के ऊपर और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इंडेक्स नंबर्स आ जाएंगे। थर्ड इसमें पार्ट है कि एवरेज ऑफ द प्राइसेस ऑफ ऑल द 10 ईयर्स एज बेस, यानी तमाम की तमाम 10 ईयर्स हैं हमारे पास और इन तमाम प्राइसेस की हम एवरेज ले लेंगे। ठीक है, तमाम प्राइसेस जो हैं तमाम वैल्यूज़ को प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाय कितने हैं 10 है हमारे पास ईयर्स, तो 10 पे डिवाइड कर देंगे और हमारे पास ये वैल्यू आती है, ये एवरेज 26 आ रही है। अब हमने क्या करना है कि हर एक प्राइस को 26 के ऊपर डिवाइड करना है। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास 20 है, 20 को 26 पे डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर द ईयर 1964 हमारे पास इंडेक्स नंबर आ जाएगा 76.9। इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू 18 है, 18 को हम 26 पे डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 69.2। फिर 23 डिवाइडेड बाय 26 इंटू 100 ये 88.5 आ जाएगी। ये फिक्स बेस मेथड हम कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा मेथड कर रहे हैं, फिक्स बेस मेथड की। एक फिक्स बेस मेथड, एक फिक्स बेस जो है वो आपको बता दी गई है। जैसे उसने बताई है फर्स्ट में कि 1964 एज बेस है, दूसरे में उसने बताया है कि 5 ईयर्स की जो प्राइसेस हैं उनको, उनका एवरेज जो है वो बेस है, और थर्ड में अब क्या है कि 10 ईयर की जो प्राइसेस हैं उनको, उनका एवरेज जो है वो आपके पास बेस है। ठीक है, अब हर वैल्यू को हम 26 पे डिवाइड करते जाएंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये इंडेक्स नंबर्स आ जाएंगे। Question number 5.1 from your exercise. Find index numbers using 1977 as base. Average of the prices as base for the following data. ये जो बीच में जो एक पार्ट है ये इस तरह का पेपर में आ चुका है, तो ये अगर कर लें तो ये बेहतर है। 1980 इज इक्वल टू 100। अब 100 जब किसके लिए होता है, बेस पीरियड के लिए 100 लेते हैं। ठीक है, तो क्या मतलब है इसका कि 1980 जो है वो आपका, उसकी प्राइस जो होगी वो आपका बेस पीरियड की प्राइस होगी। ठीक है, अब आपने इंडेक्स नंबर फाइंड करने हैं। सबसे पहले तो 1977 की जो प्राइस है वो बेस पीरियड है। फर्स्ट जो हम कर रहे हैं, फर्स्ट कॉलम जो है उसमें देखें सिंपल इंडेक्स नंबर हम फाइंड कर रहे हैं। तो अब हर एक प्राइस को हम किस पे डिवाइड करेंगे, 1977 की जो प्राइस है उस पे डिवाइड करेंगे। 22.50 ये खुद अपने ऊपर जब डिवाइड होगी 100 से मल्टीप्लाई तो फर्स्ट बेस पीरियड की देखिए 100 आ रही है अब हमारे पास इंडेक्स नंबर। ठीक है, और फिक्स बेस मेथड हम कर रहे हैं। फिक्स बेस मेथड का क्या फार्मूला है, पी नॉट एन इज इक्वल टू पी एन ओवर पी नॉट इंटू 100। ठीक है, फिक्स बेस मेथड। अब हमने नेक्स्ट जो 78 की प्राइस है वो है 25.00 या 25, उसको हम हर प्राइस जो होगी उसको हम किस पे डिवाइड करेंगे, 22.50 को। 25 डिवाइडेड बाय 22.50 इंटू 100 ये आपके पास 111.11 आ जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट प्राइस हमारे पास 27.50 है, इसको हम डिवाइड करेंगे 22.50 से और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट इंडेक्स नंबर आ जाएगा 122.22। ठीक है। फिर 30 है हमारे पास फॉर द ईयर 1980, प्राइस 30 है। 30 को हम डिवाइड करेंगे 22.50 से और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1980 के लिए जो इंडेक्स नंबर आएगा वो 133.33। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो प्राइस है 81 के लिए वो है 35। 35 को भी हम 22.50 पे डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट इंडेक्स नंबर आ जाएगा फॉर द ईयर 1981 155.56। ठीक है। 1982 की प्राइस हमारे पास है 32.50, इसको भी हम डिवाइड करेंगे 22.50 पे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1982 के लिए जो इंडेक्स नंबर आएगा वो है 144.44। ठीक है। इसी तरह से तमाम के लिए हमने जो है ये इंडेक्स नंबर फाइंड कर लेने हैं। अब सेकंड जो इसमें पार्ट है वो है कि 1980 इज इक्वल टू 100 का मतलब है कि 1980 को आपने बेस पीरियड लेना है उसकी प्राइस को। अब 1980 की जो प्राइस है वो क्या है 30 है, यानी हर एक वैल्यू को हम 30.00 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है। हर एक प्राइस को हम 30.00 जो कि 1980 की प्राइस है उस पर डिवाइड करेंगे, वो हमारा बेस पीरियड प्राइस होगी। ठीक है। तो उस पर डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये इंडेक्स नंबर्स आ जाएंगे। जैसे फर्स्ट हमारे पास है 22.50, उसको डिवाइड करेंगे 30.00 से और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट जो इंडेक्स नंबर आएगा वो है 75। इसी तरह से नेक्स्ट प्राइस है 25। 25 डिवाइडेड बाय 30 करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई तो 83.33 नेक्स्ट जो इंडेक्स नंबर है वो आ जाएगा। फिर नेक्स्ट 79 के लिए जो वैल्यू है वो है 27.50, उसको भी हम 30 पे डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इंडेक्स नंबर आ जाएगा 79 के लिए 91.67। इसी तरह से 30 जब 30 पे डिवाइड होगा 100 से मल्टीप्लाई तो इसके लिए जो हमारे पास इंडेक्स नंबर होगा वो 100 होगा बेस ईयर के लिए। ठीक है। तो 35 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100, इसी तरह से 32.50 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100, 37.50 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100, इसी तरह से 47.50 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100 एंड 45.00 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100। तो ये सारे इंडेक्स नंबर हमारे आ जाएंगे तमाम ईयर्स के लिए। थर्ड जो पार्ट है वो है एवरेज ऑफ द प्राइसेस एज बेस। ये अभी एग्जांपल में भी हमने किया है कि तमाम ईयर्स की जो प्राइसेस हैं हम उनका एवरेज ले लेंगे और जो भी वैल्यू आती है उसी पे हम सारी प्राइसेस को हम डिवाइड करेंगे। ठीक है। ये हमारी बेस पीरियड प्राइस बन जाएगी। हम तमाम प्राइसेस कौन सी हैं इन सब को हमने प्लस कर लिया, उनको नंबर ऑफ वैल्यूज़ 9 है, 9 ईयर्स हैं हमारे पास। ठीक है। 9 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आती है 33.61। अब हम हर प्राइस को, हर ईयर की प्राइस को 33.61 पे डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। फर्स्ट जो प्राइस है वो है 22.50 डिवाइडेड बाय 33.61 इंटू 100। ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स नंबर आ जाएगा 66.94। इसी तरह से नेक्स्ट जो प्राइस होगी 25 है 78 के लिए, 1978 के लिए, उसको हम डिवाइड करेंगे 33.61 से और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट इंडेक्स नंबर आ जाएगा। इसी तरह से हर ईयर की प्राइस को हम इसी वैल्यू पे 33.61 पे डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये सारी जो है इंडेक्स नंबर आ जाएंगे फॉर एवरेज ऑफ द प्राइसेस एज बेस के लिए। ठीक है। तो ये क्या, कौन सा मेथड हमने पढ़ा है, ये फिक्स बेस मेथड है। ठीक है। क्या फार्मूला है उसका, पी नॉट एन इज इक्वल टू पी एन ओवर पी नॉट इंटू 100। The next question is 5.2 from your exercise
Find index numbers taking the year 1930 as base, the average of the first 3 years as base, the year 1935 as base for the following data. अब ये जैसे एग्जांपल की है, अभी हमने ये 5.1 क्वेश्चन किया है, बिल्कुल उसी तरह से है। फर्स्ट जो है वो है टेकिंग द ईयर 1930 एज बेस। अब 1930 की जो प्राइस है वो बेस ईयर की प्राइस होगी, ठीक है। उसी पे सब प्राइसेस को उस पे डिवाइड करना है। अब क्या होगी, 4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100, क्या आ गया आपके पास, 100 आ गया। 5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100, क्या वैल्यू आ गई, 125। 6 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100, ये हमारे पास आ गई 150। 7 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100, ये वैल्यू आ गई 175। इसी तरह से 8 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100, ये नेक्स्ट इंडेक्स नंबर आ गया 1934 के लिए 200। 10 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100, ये वैल्यू आ गई 250। 9 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100, 225 के इक्वल हो गया। 10 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100, 250, ठीक है। 11 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100, 275, ठीक है। ये सारे इंडेक्स नंबर आ गए। अब सेकंड जो पार्ट है वो है द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 years एज बेस। अब फर्स्ट 3 years कौन से हैं, 1930, 31 और 32। इसकी जो प्राइसेस हैं उनका एवरेज ले लें। 4 + 5 + 6 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास एवरेज आ जाएगी। कितनी आती है एवरेज हमारे पास, 10 आती है कि 5 आती है, 5 आती है, ठीक है, 5 आ जाएगी। तो हम हर वैल्यू को किस पे डिवाइड करेंगे, हर प्राइस को हम 5 के ऊपर जो है वो डिवाइड करेंगे। देखें 4 + 5 + 6, 11 + 4 कितना हो गया, 15। 15 डिवाइडेड बाय 3 हमारे पास क्या आ गया, 5, ठीक है। तो अब 5 के ऊपर हम इसको डिवाइड करेंगे। 4 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100, 5 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100, इस तरह से 6 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100, 7 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100, 8 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100, ये सारे इंडेक्स नंबर हमारे पास आ जाएंगे। नेक्स्ट जो पार्ट है वो उसमें क्या कह रहे हैं, द ईयर 1935 एज बेस फॉर द फॉलोइंग ईयर, फॉर द फॉलोइंग डाटा, ठीक है। क्या है, ईयर 1935 एज बेस। अब 1935 की देखें प्राइस कौन सी है, 10 है। तो हर प्राइस को हम किसके ऊपर डिवाइड करेंगे, 10 के ऊपर डिवाइड करेंगे। 4 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, 5 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, 6 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, 7 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, 8 divided by 10 into 100, 10 divided by 10 into 100, 9 divided by 10 into 100, 10 divided by 10 into 100 and 11 divided by 10 into 100। इस तरह से हमारे पास तमाम ईयर्स के लिए इंडेक्स नंबर जो है वो आ जाएंगे। Question is 5.3 from your exercise. From the following data compute index number for the years 1930 to 38 taking 1932 as base। अब 1932 की जो प्राइस है जो कि 20 है वो बेस पीरियड प्राइस है, ठीक है। हर एक प्राइस को, हर ईयर की प्राइस को हम किस पे डिवाइड करेंगे, 20 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। 20 पे डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिक्स बेस मेथड हम यूज कर रहे हैं। क्या फार्मूला है, P0n इज इक्वल टू P(n/P0) इंटू 100, ठीक है। अब 15 है, फर्स्ट ईयर 30 की 1930 की जो प्राइस है, 15 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100, ये हमारे पास आ जाएगा 75। 14 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100, 70 आ जाएगा। 20 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100, 100 आ जाएगा। 21 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100, 105 आ जाएगा। 24 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100, 120 के इक्वल हो जाएगा। 23 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100, 115 आ जाएगा। 25 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100, 125 आ जाएगा। 18 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100, ये आ जाएगा 90। 27 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100, ये आ जाएगा 135। Students, this is your today's home task.
क्वेश्चन नंबर 5.2, क्वेश्चन नंबर 5.3 ये मैंने आपको करा दी है, लेकिन आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा. And give short answers to these questions. Define an index number. Define simple and composite index number. What are the different types of index number? And send in subject group.